चलो, a question which expects you to prepare forecast statement of financial position for Pumis company and effect of the proposed expansion on the working capital ratios listed by the finance director. Discuss the ways in which implementing the proposed changes in working capital represent changes in working capital investment policy for Pumisco and changes in working capital funding policy for Pumisco. ठीक है. Pumis company plans to expand its business operations by opening several new outlets at a cost of 8 million, financed by an issue of loan notes. The company currently generates credit sale of 80.768 before cost of sales 27.700. All sales are on credit. The current statement of financial position of Pumis Co is as follows. Non-current asset, current asset, trade receivable, cash and cash equivalent. ठीक है. और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वगैरह सब दिया है आपको. प्यूमिस कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट एक्सपेंशन विल इंक्रीज क्रेडिट सेल्स बाय 18.7% with cost of sales being 33% of credit sales and profit after tax being 6.818 million. Non-current assets will increase by 11%. The bank has demanded that Pumis company's overdraft be reduced to 3 million and the company expects its cash balance to be 7 lakh after the expansion. Pumis company has been receiving complaints from its suppliers about late payments and the company plans to improve its working capital management as part of the expansion. It expects that the following working capital ratios will result: inventory holding period, trade receivable collection period, trade payable payment period. The finance director of Pumis wishes to investigate how the expansion will change the following ratios: trade payables payment period, current ratio, revenue upon net working capital ratio. Assume that there are 360 days in a year. You have to prepare a forecast statement of financial position. आपको forecast balance sheet बनाना है. फोरकास्ट पी एंड एल नहीं बनाना है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट होता है, राइट? नाउ, हाउ टू गो अबाउट दिस? टेल मी, शुरुआत कहां से करेंगे? यू ऑलरेडी हैव अ बैलेंस शीट. ठीक है, आपके पास बैलेंस शीट ऑलरेडी है, आपको उसी को डेवलप करना है आगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. Let's call this forecast statement of financial position as on. नॉन करंट असेट 54070. लेट्स सी एक एक आइटम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है अपने को. नॉन करंट असेट्स विल इंक्रीज बाय 11%. करेक्ट. सो एक एक आइटम उठाओ, उसका इंफॉर्मेशन देखते चलो, दिमाग मत लगाओ बियॉन्ड द पॉइंट. मतलब दम भी मत बनो. व्हेन आई से दिमाग मत लगाओ, आई मीन ज्यादा होशियारी मत दिखाओ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अदरवाइज यू विल से कि यार कुछ भी करेंगे तो चलेगा. 54070 प्लस 11% ऑफ 54070. 60017. ठीक है. अब करंट असेट्स, इसमें अपना पहला आइटम है इन्वेंट्रीज. ठीक है. Pumis company expects that expansion will increase credit sales by 18.7% with cost of sales being 33.33% of credit sales. And आपका inventory holding period is 50 days. तो कैसे करेंगे? How do you think should we calculate inventory? First of all, get your cost of sales. ठीक है. How will you get cost of sales? You will get it from revenue. ठीक है. नाउ आई एम टेलिंग यू द अप्रोच, यू डू द कैलकुलेशन, देन आई विल टेल यू. दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि अपने को प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है. ठीक है. करंटली दे आर टेलिंग यू कि देखो, माय क्रेडिट, ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स. ठीक है. प्यूमिस कंपनी नोस कि यार मेरा क्रेडिट सेल जो है दैट विल इंक्रीज बाय 18.7% with cost of sales being 33.33% of credit sales. Do we know how much is the sale of the company right now?
कैसे आएगा कंपनी का सेल? डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन दैट? यस, द कंपनी जनरेट्स क्रेडिट सेल्स ऑफ 80.768 मिलियन। ठीक है, 80.768 मिलियन को आप सबसे पहले यू विल इंक्रीज इट बाय 18.7%. You will calculate 33.33% of that. Then you will calculate inventory using the inventory holding period that is given to you. I'm giving you 1 minute. ठीक है, करो क्विकली। चलो, लेट्स सी इफ वी कैन कैलकुलेट इट। ये है आपका वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट वन, इन्वेंट्री, सेल्स, करंट ना है 80.768 मिलियन। 80.768 मिलियन। ठीक है, प्रोजेक्टेड सेल, you are supposed to add 18.7%, this plus 18.7%। ठीक है, now cost of sale is 33% of credit sale। Projected cost of sale is 33% of sale, this into 33%। ठीक है, and inventory holding period is, this is in days, है ना? Inventory holding period is 50। अब inventory holding period is, what is the formula? This is basically equal to closing stock upon cost of sales into 365। Closing stock upon cost of sales into 365 is 50। So अगर मुझे चाहिए closing stock, ठीक है, so don't you think you should be doing 50 into cost of sales divided by 365? Have they mentioned? हाँ, they have told us to take सर 360। 360। तो ये 360 हो गया। दिस इज माई इन्वेंट्री राइट नाउ। ठीक है, यहां पे लिखो इन्वेंट्रीज, वर्किंग नोट वन। दिस इज इन थाउजेंड्स, हाँ, जो भी है वो। सो अपॉन 1000। हाँ शरण बोल। सर अभी डू वी लाइक अभी आपने इन थाउजेंड्स किया है, फुल फिगर देंगे तो वो अलग अलग आ सकता है ना। थोड़ा सा अलग आएगा डेफिनेटली, बट फिर आपको सारा कुछ एक ही इसमें रखना है। यू कैन नॉट हैव लाइक डिफरेंट अप्रोचेस, कि ये इसको विदाउट, इसको एक को 1000 में रखो, दूसरे को नहीं रखो, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ सर वो ठीक है, हाँ। लेकिन अभी देखो आपने वो जो भी किया है सेल सब आपने फुल फिगर से किया है। हम्म। पर मैंने जो थाउजेंड्स में है मैंने उस हिसाब से किया है, तो कौन सा करना बेटर रहेगा सर।
सेक्शन सी में दोनों चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नजर। क्योंकि मेरा ऐसे आया है 4394.44। हाँ हाँ। हाँ हाँ, 4394.44। चलता है, कुछ नहीं होता। ठीक है यहाँ सर। चलेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, आई थिंक ऐसे बेटर है, मतलब पूरा करके इन द एंड वी कैन डिवाइड बाय 1000 तो। हाँ मतलब विच एवर अप्रोच, दैट एब्सोल्युटली मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है सर। ठीक है। ओके। चलो, नाउ सेकंड पार्ट इज इन्वेंट्री। सॉरी, इन्वेंट्री हो गया, अभी ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या है डेटा ट्रेड रिसीवेबल्स का? ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड इज 60 डेज, है ना? तो कैसे निकालेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड ऑफ 60 डेज? आपको सेल्स है आपके पास, यू हैव द फिगर ऑफ सेल्स, you have trade receivables collection period, right? So working note 2, receivables, कितना? 60 days. And how is this calculated? This is debtors upon credit sales into 360. So if I need debtors, what I will do is 60 into projected sale divided by 360, 159,78603, है ना? ऐसे ही आएगा। सो यहां पे लिखो 15978.6। ठीक है। अब आगे यू हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बारे में कुछ इन्फो दिया है आपको? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में देखो। 700 सर। जी सर, एक्सपेक्टेड कैश 7 लाख। इस 7 लाख। ठीक है। अरे, ठीक है। सो आई थिंक माई असेट साइड इज ओवर। अब लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। इक्विटी, आई डोंट थिंक दैट हैज अंडरगॉन अ चेंज, दैट रिमेन्स 6,000। ठीक है। रिजर्व्स 34,000। कुछ अभी चेंज होगा? कैसे चेंज होगा? द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड, दैट विल गेट एडेड हियर, राइट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोजेक्टेड इज 6.818। कैन आई एड 6,818 हियर? यार इससे तो सच में यार, इवन ए एंड बी क्वेश्चंस आर टफर देन दिस, सेक्शन सी क्वेश्चन से तो। व्हाट तो आफ्टर दिस? हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, मैं ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी 18 है। एनीथिंग एल्स गिवन अबाउट नॉन करंट लाइबिलिटी? नो। ऊपर कुछ है? यस सर, पहला वाला सेंटेंस वैसे से लोन नोट्स, द फाइनेंस फर्स्ट, बाय लोन नोट्स। परचेसिंग सेवरल न्यू आउटलेट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 8 million। ठीक है। फिनेंस्ड यूजिंग लोन नोट्स। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? ट्रेड पेएबल्स। पेएबल्स पेमेंट पीरियड इज गिवन टू यू 60 days. You have credit purchases. Can you calculate the projected trade payables?
वर्किंग नोट 3, द आइडियल पेएबल्स पेमेंट पीरियड का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज क्रेडिटर्स अपॉन क्रेडिट परचेसेस इंटू 360। बट जब क्रेडिट परचेसेस ना हो तो टोटल परचेस भी ना हो तो यूज कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना। सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल से इन्वेंट्री फिगर निकाल के वैसे करे तो। क्या करेगा? इन्वेंट्री फिगर ओपनिंग है तेरे पास परचेस निकालने के लिए? अच्छा तो नहीं सर। नहीं है ना। कितना है अपना पेएबल्स पेमेंट पीरियड? 60। ठीक है, तो पेएबल्स कैसे आएंगे आपके? क्रेडिटर्स दिस इनटू कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन 360, करेक्ट। 5272.94 एंड यू हैव योर ओवरड्राफ्ट, राइट? कितना है? 3 million, है ना। लेट्स सी इफ यू कैन गेट द बैलेंस शीट टोटल राइट। मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो रोएंगे फिर मिलके। ठीक है, हो गया। अब जो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है उसको रहने देना, उसके पीछे मत पड़ना, एफआर का पेपर नहीं है ये। ठीक है। So rounding off, I mean, they won't consider, right? They won't. You will get marks for each calculation also ना। एक एक कैलकुलेशन का स्कोर मिलेगा आपको। ठीक है। अब ये 6 मार्क के लिए था। बेसिकली 3 वर्किंग नोट्स एंड प्लस 11% ऐड करना। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड एक्सपांशन ऑन वर्किंग कैपिटल रेशियोज लिस्टेड बाय द फाइनेंस डायरेक्टर। How will trade payables payment period change current ratio and revenue upon net working capital? Current asset upon current liability gives you current ratio, right? कितना होगा करंट लाइबिलिटी? 2.55 will be your current ratio। आपका ट्रेड पेएबल्स पेमेंट पीरियड देखो तो कितना आता है अभी। राइट नाउ व्हाट इज द ट्रेड पेएबल्स पेमेंट पीरियड अभी के लिए? करंट लेवल ऑफ पेएबल्स आर, आपको किस पे पेएबल पेमेंट पीरियड का इंपैक्ट पूछा है, राइट? पेएबल्स राइट नाउ आर 9690। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है आपका करंट? ऊपर दिया होगा ना, 27,700। तो दिस अपॉन दिस इंटू 360। अर्लियर इट वाज 126 डेज का आपका पेएबल्स पेमेंट पीरियड था। नाउ इट हैज ड्रॉप डाउन टू 60, करेक्ट। सो 66 डेज का टारगेट रिडक्शन है। आई थिंक इट्स अ लॉट टू एक्सपेक्ट ना। आप लिटरली आप हाफ पे जाने का कोशिश कर रहे हो। फ्रॉम 126 यू आर ट्राइंग टू गो टू 60, एक्चुअली लेस देन हाफ जाने का कोशिश कर रहे हो। आई थिंक इट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। करंट, यस शरण। सर वो 129 कैसे है मतलब? 129 करंट पेएबल्स कितना? 9690। करंट कॉस्ट ऑफ सेल कितना? अच्छा, we use the previous values. Interesting. Okay. बस क्या पूछा है? Wishes to investigate how the expansion will change the following ratios. So you will need the earlier one and the new one. Same thing for all three. And then you have to comment. ठीक है। Sir, just wanted to check, like for example, ये तीन के लिए they have not given the marks division नीचे।
हम्म। तो हमको कैसे पता चलेगा ये कहाँ पे आएगा? ऐसे केस में यार कैलकुलेट करके एक्सप्लेन करो। वन 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 प्लस ठीक है। एक्सप्लेनेशन। सी कैलकुलेशन वोंट हैव सो मेनी मार्क्स, एक्सप्लेनेशन या उसका इंटरप्रिटेशन हैज मोर मार्क्स। ठीक है सर। ठीक है। ओके। एंड discuss the ways in which implementing the proposed changes in working capital represent changes in working capital investment policy for Pumis and changes in working capital funding policy for Pumis. Working capital funding policy and working capital investment policy, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? So the investment policy talks about like the profitability and liquidity वो part, and the funding policy talks about whether we use the aggressive approach or the conservative approach. ओके, कैन यू इलैबोरेट थोड़ा सा? Sir, so when we focus more on liquidity, then the net working capital will be lower. That's with respect to investment. And if we focus on profitability, then we'll have high net working capital, which means the inventory and receivables will be higher. ओके, फेयर इनफ। शर्मा जी, व्हाट डू यू वांट टू से? कुछ ऐड करना है आपको आपके एंड से? No, sir. पक्का? Yes, sir. So funding policy में we can say aggressive approaches where we use short-term finances where it is more cheaper but riskier, and करेक्ट। conservative approach is where we use the long-term source of finance, which is more expensive. ओके। अच्छा, आपने वो थियोरी वाला काम शुरू कर दिया जो मैंने आपको बोला था करने को? नहीं क्या सर। बोला था, काम याद है? यस सर। बताओ मुझे, व्हाट डिड आई टेल यू टू डू? सर एक एक दो क्वेश्चन सेक्शन सी वाले लेके रीड 3 क्वेश्चंस, उसके बाद लेके वी रीड द आंसर्स जो पीछे लिखा हुआ है और अपने वर्ड्स में टाइप करने के लिए। तो क्यों नहीं किया? सर कल एक्चुअली बहुत पढ़ाई हो गई थी और उसके बाद एग्जॉस्ट हो गया तो नहीं किया। लवली। तो आज एग्जॉस्टेड है? नहीं सर, आज करेंगे। पक्का? यस सर। एटलीस्ट जिन दोनों का पेपर है अभी वो दोनों तो करो यार, प्लीज। Yes, sir. क्योंकि ना थ्योरी सब लोगों को लग जाने दो अभी एक सेकंड। सर हाँ, आपने रिकॉर्डिंग में किया नहीं था। नहीं, बंद किया था मैंने। उतना समझ में आता है। सेम थिंग। आधा पेपर थियोरी है बॉस, और रेपिटेटिव नेचर का थियोरी है। मैंने बाय द वे आज ना, मैंने 99 बैचेस में फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने कुछ बोला है। प्लीज दिल से मत लगाना, पूरा क्वार्टर हैज बीन वेरी वेरी। एनीवे, थियोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एफएम पेपर। एक बार ना एक आधा टॉपिक का न्यूमेरिकल पार्ट मत करके जाना चलेगा, लेकिन थ्योरी आपको करके ही जाना है। एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन दो कम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट थ्योरी करो बॉस। आपका आधे से ज्यादा पेपर थ्योरी का है। द रिकॉर्डिंग्स दैट आई हैव मेड अवेलेबल, उसमें एंड एंड में ना मैंने बहुत सारे थ्योरी एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। अगर आप देखेंगे ना दैट होल लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग्स जो मैंने बाद में आपको बोला था चेक करो, उसमें सिर्फ थ्योरी एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए हैं भर भर के। वो आता है पेपर में आजकल। और देखो थियोरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल फंडिंग फाइनेंसिंग पॉलिसी, उसमें दिमाग नहीं लगाना है ना। इन्वेस्टिंग पॉलिसी में क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट, उतनी ही बात करेंगे, और तो कुछ है नहीं। वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उतना ही बात करना है, नया कुछ नहीं है। बट अगर आप वो नहीं करोगे ना तो आपको पेपर में बहुत दिक्कत होगी, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। ठीक है। अब अभी एक और क्वेश्चन करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला। एंड व्हाट आई वाज, चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर व्हाट आई वाज थिंकिंग की बात करेंगे। ठीक है। द नेम ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज मिप्लाश कंपनी। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है, इसको ढंग से पढ़ो। इसमें ना, सी देर आर सर्टन वर्किंग नोट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है। सर आप जब थ्योरी मतलब बोलते हो तो डू यू मीन थ्योरी ऑफ लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन एनवायरनमेंट वो एवरी, भी? वो लल्लू थियरी है। उसको देख के क्या लगता है, अरे ये तो मुझे आता है,
ये तो मैं टाइम पे मैनेज कर लूंगा। ऐसे मुझे भी आपके जगह पे मुझे भी ऐसे ही लगेगा। बट आई विल टेल यू, व्हेन आई वेंट टू राइट माय सीपीए एग्जाम ना, मेरा तो वो एक्सपायर भी हो गया पास उसमें, बिकॉज आई वेस्टेड सो मच टाइम उसमें। 18 मंथ्स में यू हैव टू फिनिश ऑल द पेपर्स, अदरवाइज यू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो मैं फर्स्ट पेपर में ऐसे ही सोच के चला गया कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मुझे तो सब आता है, दिन भर यही सिखाता हूँ। बट व्हेन आई सैट डाउन टू राइट ना, आई वॉज नॉट एबल टू गेट दोस फाइनर न्यूआंसेस। मेरा रिकमेंडेशन मानोगे ना, छोटा सा काम करो, थियरी एमसीक्यू को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, स्टडी अप के थियरी एमसीक्यू उठाओ और उसको अच्छे से करके जाओ। मैंने भी रिकॉर्डिंग में किया है, बट सी आई बिलीव फॉर एटलीस्ट द थ्री ऑफ यू, आपको यू हैव इनफ ब्रेन्स ऑफ योर ओन टू रीड एंड डू इट ऑन योर ओन। मुझे सवाल पूछो, अगर डाउट होगा तो मैं बैठ के करा दूंगा। बट वो थियरी एमसीक्यू ना, एक एक एमसीक्यू आपका पढ़ के हो जाना चाहिए। आपको चाहिए तो मैं सुबह या शाम 2 बार डॉक्टर के दवाई जैसे याद दिला दूंगा आपको, ठीक है? बट वो प्लीज करके जाना, आपका पास और फेल ना वो थियोरी के पे डिपेंड करता है। थियोरी एमसीक्यू करो, सेक्शन सी की थियोरी करो। सेक्शन सी की थियोरी तो बहुत रेपिटेटिव नेचर की है, वही 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 बार 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 आता है। कल तो देखा ना, दोनों सेम था, राइट? द क्वेश्चन लुक्स डिफरेंट बट एट हार्ट इट्स द सेम, ठीक है? विच इज वाई इन दिस मीप्लाश कंपनी क्वेश्चन ना, आई देर आर सर्टन calculations that I want you to do. अब ये क्वेश्चन अपना टिपिकल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है, ठीक है? सो क्वेश्चन 291 है, ठीक है? वो एक बार खोलो आप, क्वेश्चन 291, ठीक है? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज फॉर 11 मार्क्स एंड देन देर इज समथिंग फॉर सम थियोरी फॉर 9 मार्क्स, ठीक है? आई विल टेल यू व्हाट ऑल डू आई वांट यू टू डू। I want you to first of all calculate the net present value. अब net present value के लिए क्या क्या लगता है अपने को? सेल लगता है, ठीक है? आपको सेल का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया है आपको, उसका सेलिंग प्राइस का इंफॉर्मेशन दिया है, लेट मी शो इट टू यू। और आप मुझे बस कैलकुलेशन करके देना, बिकॉज दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है? यहाँ पे मोटरसाइकिल के यूनिट सोल्ड दिया है, ठीक है? उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, इन्फ्लेशन रेट दिया है, ठीक है? सेलिंग प्राइस का इन्फ्लेशन, करंट प्राइस सब दिया है। सेम थिंग दिया है फॉर वेरिएबल कॉस्ट, सेम थिंग दिया है फॉर फिक्स कॉस्ट, जो भी है। तो आप मुझे इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दो, ठीक है? आई विल गिव यू 10 मिनट्स। आईआरआर वगैरह पहले मत करो, जस्ट स्पेंड टाइम ऑन एनपीवी कैलकुलेशन, ठीक है? 10 मिनट दे रहा हूं, अच्छे से करो, एक एक कैलकुलेशन ढंग से वर्किंग नोट बना बना के एक्सेल शीट में करो, ठीक है? देन आई विल शो यू हाउ द कैलकुलेशन इज डन। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू टैकल दिस, ठीक है? स्टार्ट करो। Whenever you want to approach an investment appraisal question, you need a couple of basic requirements. What are those? First one is you need amount of cash flow, then you need timing of cash flow, and most importantly, you need the discounting factor. ठीक है? अब लेट्स सी इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन अपने पास इजीली अवेलेबल है, एंड व्हाट कैन वी डू टू गेट दैट? T0, T1, T2, T3, and T4. What is the initial investment in this project? 220 million. ठीक है? Let's prepare this in thousands, है ना? In dollar thousand. Initial investment 220 million. उसके बाद residual value at the end of 4 years 30 million. Selling price year 1 terms में 20,000 per motorcycle. Expected selling price inflation is 6%. So year 1 का selling price है 20,000. ईयर 2 का अमाउंट विल कीप ऑन ग्रोइंग बाय 6%, ठीक है? वर्किंग नोट 1,
calculation of sales. So, number of units sold 25,000, 45,000, 40,000, 20,000. Selling price per unit. इधर आएगा 20,000, इसको आप इंक्रीज करो 6% इन्फ्लेशन एवरी ईयर. ठीक है. देन टोटल सेल्स इन थाउजेंड्स. ठीक है. उसके बाद व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव? वेरिएबल कॉस्ट ईयर वन प्राइस टर्म्स 14,000. एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन 6%. ठीक है. बताइए ये कितना है? 14,000. ठीक है. मेक सेंस सो फार? Yes, sir. अब वेरिएबल कॉस्ट हो गया और आपका सेलिंग प्राइस हो गया. ठीक है. देन इसके बाद वील हैव व्हाट एल्स? फिक्स कॉस्ट का डेटा Four. है ना. व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट इन दिस केस? Incremental fixed cost year one price terms 120 million. Expected fixed cost inflation. Working note 3 fixed cost. कितना है? 120 million. इसका 10% है. यस बद्रू टेल मी. सर अगर इंक्रीमेंटल ना होता तो फिक्स्ड कॉस्ट हर तो एक फिर ईयर में रेलेवेंट भी नहीं होता डिसीजन मेकिंग के लिए, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते, फिर उसको फिर छोड़ देते हम हमारे कैलकुलेशंस में से. ओके. ठीक है. ओके. अब लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग दिस डेटा. Initial investment, sales, variable cost, fixed cost. ठीक है. इसके बाद what will I get? I will get my. अच्छा, there is a residual value inflow of 30 million at the end of 4 years. Residual value 30,000 है. ठीक है. Let's get the net cash flow. Initial investment, sales, variable cost, fixed cost, residual value. कितना है इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर? 14%. ठीक है. 1/1 plus 14%. सी यू विल हैव योर डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल है ना पेपर में, तो आप तो वही यूज कर लेना.
डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फिर प्रेजेंट वैल्यू, एफ इंटू जी। $16,794। ठीक है, अब ये हो गया एनपीवी। आपको पूछा है आईआरआर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। कैसे होगा आईआरआर? आईआरआर, सी आपको डीसीएफ को नहीं कंसिडर करना है, आपको ये कैश फ्लोज को कंसिडर करना है इफ यू वांट टू कैलकुलेट आईआरआर। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मत कंसिडर करना, बेसिक कैश फ्लो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, नेट कैश फ्लो विदाउट अप्लाइंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, सो योर आईआरआर दैट वे इज 18%, 17.7% अगर आप उसको 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट करेंगे तो। ठीक है, और पेबैक पीरियड एंड आरओसीई, आई थिंक पेबैक पीरियड तो 1 मार्क का है। आरओसीई बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। डोंट स्टार्ट विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट करना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। उसके बाद suitability of techniques used in A for determining whether to undertake an investment and advise whether Melplash company's proposed investment is financially acceptable. Discuss the suitability of techniques, मतलब आपको एनपीवी, आईआरआर, पेबैक एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चारों मेथड्स के बारे में आपको बात करना है कि हाउ एंड व्हाई आर दीज मेथड्स suitable, और is there a reason why they are not considered appropriate for the business। ठीक है, अब दिस इज अ थियोरी पार्ट, रेपिटेटिव टाइप का ही क्वेश्चन आएगा इसमें। समटाइम्स दे विल ट्विस्ट द डेटा, दे विल से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनपीवी, और व्हाई इज एनपीवी बेटर देन आईआरआर, और व्हाई इज एनपीवी बेटर देन पेबैक पीरियड मेथड। तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा विल बी आस्क्ड कि ये बेटर कौन सा है बताओ, या इज इट सुटेबल फॉर द करंट सिचुएशन वो बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूजुअली आएंगे। ठीक है, सो आई वांट यू टू रीड इट वंस, थियोरी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाइल गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, बट एक बार जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन। कल क्लास रहेगा। बैठना है? आई डोंट माइंड सर, अगर आप। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले लूंगा। ठीक है सर। सर कल कैन वी डू लाइक अ सेक्शन सी फ्रॉम लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर? ठीक है, बट एक ठीक है। काम करो ना, फिर कल के क्लास के पहले इफ यू वांट मी टू टेक दैट अप टुमारो, ओके। 27th एंड 28th मई के जो दो रिकॉर्डिंग्स है ना, वो दो यस सर। रिकॉर्डिंग देख के आओ ना एक बार कल। 28, 29। 27 एंड 28, उसमें ओके। एक कॉर्फ कंपनी करके क्वेश्चन है। एक सेकंड ना, लेट मी स्टॉप दिस।